20 crore people are tobacco, around 20 crore people are using smokeless tobacco. And out of this 27 crore adult Indians who are using tobacco, as per experts, the 9 crore adult Indian may die prematurely from these three major diseases. That is cardiovascular disease, pulmonary disease, and cancer. And this is the burden, we all know, 13 lakh deaths because of tobacco related disease in the country every year. And it has even increased now. And this 13 lakh deaths means 13 lakhs consumers are, the tobacco industry are losing 13 lakh their consumers or their customers. But we all know the profit margin of tobacco industries are higher and higher every year, from where they could get this kind of profit margins. So they are targeting our young generation, our children, school-going children, young generation. They are trying all sort of things to attract those kind of population by hook or crook. Excuse me, Dr. Deepak, we are unable to see your screen. Okay. What is first? Sorry. Let me share. I think I have not shared it. Oh, yeah. Share screen. You can start from where you left. Yeah, it's okay now. You can skip this. You can skip this. It's okay now. Yes. Okay. Yes. Slideshow, you can make it here. Yes. So from current slide, I'm trying to. Yeah, it's okay. Yeah. Thank you. So these tobacco industry people, they are targeting our young generation. Their policy is catch them young, and we need to take care of those generation, and we should target for the tobacco-free generation in our country. So, and media is playing very vital role in advancing tobacco control. So you can see here, there are 27 crore tobacco users, as I mentioned in my previous slide, and tobacco industry is targeting them to attract the young generation, to increase their customer base, and policymakers are making policies to control tobacco industries. Law enforcers are all implementing the laws, policies at the grassroots. Civil society group like us, like CIFAR, are all trying to expose them to help the government, and also to enhance the capacity of the law enforcers. We also work as a watchdog in the society, in the community, and one of the major role is of media. Media is always trying to expose the hinky-pinky of tobacco industries, as well as they are also supporting the program they create awareness among the community. So you can see here, media can play a vital role in containing tobacco use. This is the the person here sitting is currently the Secretary of Ministry of School Education, Government of India, Mr. Sanjay Kumar, and we had organized a media workshop when he was there, the Additional Chief Secretary in Bihar. So what media does? It creates awareness among the readers, who is the tobacco users, about the ill effect of tobacco use, influence the policymakers for the formulation of new policies and change in the existing policy if required.
It also acts as a pressure group for the law enforcers for effective implementation of tobacco control laws at the grassroots level, and highlights the tobacco industry interference and tactics through the investigating journalism. And for all this, they take help from the civil society group like us for the new stories, for issues, and other things. So this is the role of media as such. You can see here some of the some exposure by the media about the illegal SLT industries. आप देखिए यहाँ पे GST official busted illegal गुटखा unit in Delhi that evaded 832 crore. तंबाकू कंपनी की मालकिन GST चोरी में गिरफ्तार. This is Tamil Nadu. CBI raid places linked to Tamil Nadu top cop and mantris in गुटखा scam. शिखर के ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन से मिले 1 करोड़ रुपए. All of we know about that cash seized from one of the big Shikhar group trader from the Kanpur or Unnao. So these are some of the stories, and here you can see जिन राज्यों में पान मसाला था प्रतिबंधित वहां माल भेजकर ट्रकों से मंगाते थे नकदी. It's all about that Kanpur episode. तंबाकू उद्योग जहरीली रसायन मिलाकर लोगों को बेचती है जानलेवा पान मसाला. So now the political advocacy. Bihar Health, the then Health Minister, Mr. Mangal Pandey, he has been very active in tobacco control, and he is one of the champion in tobacco control. And during one of the workshop, he has announced that Bihar will become the tobacco-free state very soon. So you can see some of the press clippings. Even Bihar Chief Minister, they have appealed to the farmers कि आप अल्टरनेटिव कोई क्रॉप को तलाशें किसानों को, और उसका एक इम्पैक्ट देखिए. इम्पैक्ट ये हुआ कि वहां पे जो बिहार में 2-3 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, ये 3 बहुत ही बड़े जिले हैं जहाँ पे तंबाकू का बड़े पैमाने पे खेती होती है, और वहां पे किसानों ने फ्लावर्स का खेती करना शुरू कर दिया. So this is the impact of the media stories, and that to the print media. अब ये झारखंड का आपको मैं दिखा रहा हूँ. हेल्थ मिनिस्टर झारखंड, while releasing the fact sheet of GYTS4 in the state, उन्होंने चिंता जाहिर की कि जो 5.1% बच्चे झारखंड में 13 से 15 साल के तंबाकू यूज कर रहे हैं. और the fact sheet also revealed that girls are also being targeted by the tobacco industry. और मंत्री की चिंता, लड़कियों को भी लुभा रही तंबाकू कंपनियां. मंत्री महोदय का कहना था कि बड़े व्यापारियों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ साथ बड़े व्यापारियों पर भी कार्रवाई जरूरी, और उसका इम्पैक्ट हुआ, और काफी बड़े बड़े व्यापारियों के ऊपर छापे पड़े थे झारखंड में और रांची में. एक ये आप मीडिया स्टोरी देखेंगे, झारखंड में पान मसाला पे प्रतिबंध था, और उस प्रतिबंध को धता बताते हुए ये टोबैको इंडस्ट्री वालों ने काजू और दूसरे ड्राई फ्रूट के नाम पे इनवॉइस काट के माल भेजना शुरू किया. संजोग से वो ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए पकड़ा गया, और ये स्टोरी उसी टाइम पे बनी थी. लोगों ने लूट लिया था माल को, ट्रक जब एक्सीडेंट हुआ था. दूसरे राज्यों से ईवे बिल और इनवॉइस, मतलब झारखंड में अगर बैन है तो उसको झारखंड, ये अपना बंगाल और उड़ीसा के नाम पे ईवे बिल और इनवॉइस बनता था, जो रास्ता झारखंड होके निकलता है, और वहीं पे माल कहीं पे डंप किया जाता था आउटस्कर्ट्स में, और वहां से चोरी छिपे सप्लाई की जाती है. तो मीडिया ने उसको भी कवर किया. कुछ इस तरह की भी स्टोरी है. गुटखा तंबाकू सिर्फ कागजों पर ही बंद है, हर जगह खुलेआम हो रही है बिक्री.
तो इस तरह के भी नेगेटिव न्यूज आने का एक इम्पैक्ट पड़ता है लॉ इन्फोर्सर्स के ऊपर। जब ये खबरें ऊपर के पदाधिकारी, ऊपर के सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर ऑफिसर जब देखते हैं तो वो एक प्रेशर नीचे लॉ इन्फोर्सर्स पे भी आता है। इवन कोर्ट हैज आस्क्ड फॉर द रोड मैप फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब ये बैन के बावजूद जब टोबैको और पान मसाला और गुटखा बेचा जा रहा था तो कोर्ट में एक पीआईएल हुआ और पीआईएल के बेसिस पे कोर्ट ने सरकार से रोड मैप मांगा। तो ये लोगों को जब जानकारी होती है और पान इंडस्ट्री को जब जानकारी होती है तो उसका एक डिटरेंट का काम करता है ये। सो व्हाई मीडिया एडवोकेसी? वी ऑल नो, हम सबों को पता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट आफ्टर वी टेक द कॉग्निजेंस, कि जब मीडिया उसको हाईलाइट करता है तब हम लोग उसके ऊपर जगते हैं, सजग होते हैं। And some of those issues are immediately solved, but few of the issues get proper attention only after media highlights them. Hope we all agree with this, क्योंकि मीडिया का काम ही यही है। जैसा कि आपने पिछले वाले में देखा, जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तब सरकार में एक चुस्ती आ जाती है। इस तरह की जो नेगेटिव खबर छपती है तो फिर वो लॉ इन्फोर्सर पे प्रेशर आ जाता है। सो दिस इज द रीजन media advocacy is very important and plays very vital role. And as a result, क्या होता है? Readers and viewers become more aware about the issue. If influence over the masses is in a better way, it would create impact amongst community about the ill effects of tobacco use. और साथ ही साथ जो एडिटर होता है किसी भी मीडिया ग्रुप का, वो उसको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी मिलती है और उसमें हमारी भूमिका एज ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ स्टोरी जैसे अगर एक्सक्लूसिव देते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारे आपके ऊपर। और टोबैको कंट्रोल एडवोकेट्स को मीडिया अपना दोस्त समझती है और टोबैको इंडस्ट्री मीडिया को अपना दूसरा एनिमी, सिविल सोसाइटी एक एनिमी है और दूसरा एनिमी मीडिया को समझने लगता है, जो हमारे मतलब में काम होता है। और इसी से कुछ टोबैको कंट्रोल लीडर्स चैंपियन भी बनते हैं। एंड अल्टीमेटली ए स्मॉल होप फ्लिकर्ड, सम लाइव्स कुड बी सेव्ड। इससे कुछ जिंदगी, अगर इस तरह का कुछ होता है तो कुछ जिंदगियां बचने की संभावना बन जाती है। अब देखिए मीडिया स्टोरी ऑन टैप्स बैन। मैं ये बिहार का एक आपको केस दिखा रहा हूँ। तंबाकू का प्रचार करने वाली कंपनियों को नोटिस दिया था पटना एडमिनिस्ट्रेशन, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, और सारे बोर्ड हटवाए गए थे। जब ये खबर छपी तो उसका ये इम्पैक्ट देखना शुरू किया। ये धीरे धीरे बोर्ड हटने शुरू हो गए थे दुकानों से। हाउ मीडिया हेल्प इन टोबैको कंट्रोल, ए केस स्टडी ऑफ बिहार, आई विल शेयर विथ यू। ये एक लेटर निकला था पंचायती राज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से कि सभी पंचायतों में कोटपा के सभी लॉज को इन्फोर्स किया जाए और पंचायतों को स्मोक फ्री बनाया जाए। जब ये खबर, जब ये लेटर अखबार को हम लोगों ने शेयर किया, मीडिया में गई, तो इस तरह से खबरें छपी। तंबाकू नियंत्रण के लिए पंचायती राज विभाग ने जारी किया निर्देश, पंचायतों को स्मोक फ्री बनाएगी सरकार। अब ये कुछ दूसरे अखबार का एक क्लिपिंग है आपके सामने। एंड द इम्पैक्ट वाज फ्यू ऑफ द ग्राम पंचायत स्टार्टेड टेकिंग कॉग्निजेंस, और उन्होंने अपने अपने पंचायतों को स्मोक फ्री डिक्लेरेशन करना शुरू किया। इस तरह से आप देख रहे हैं पंचायतों में मीटिंग हुई बजाता, ग्राम सभा की मीटिंग करके उसमें जो बिहार में उसको मुखिया कहते हैं, कई जगह सरपंच कहते हैं, कई जगह ग्राम प्रधान कहते हैं। तो ये ग्राम प्रधान महोदय ने अपने अपने पंचायतों को धूम्रपान मुक्त, स्मोक फ्री डिक्लेयर करना शुरू किया। स्मोक फ्री डज नॉट मीन कि नोबडी विल स्मोक, बट उसको जो भी उसका कंप्लाइंस है 100% कंप्लाइंस उसका करने की कोशिश की जाती है कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। जो भी दुकानें होंगी जहाँ पे बिकेंगी उस पर प्रॉपर साइनेज रहेगा और जहाँ तहाँ पर स्मोक फ्री का साइनेज मिलेगा। तो ये तमाम चीजें स्मोक फ्री डिक्लेरेशन के लिए मैंडेटरी है। अब ये देखिए अखबारों में छपना शुरू हुआ और उससे काफी एक फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब you can see here SDM Sadar in one of the district called Munger. अब SDM सदर का ही चालान कट गया 200 रुपये का कोटपा सेक्शन 4 में।
क्यों कटा? तो उन्होंने अपने ऑफिस में साइनेज नहीं लगाया था। सिमिलरली वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर के ऊपर भी जुर्माना लगा कोटपा के तहत। अगर इस तरह के लोग, गवर्नमेंट के लोग, जिनके जो खुद ही लॉ इन्फोर्सर्स हैं, अगर उनका भी चालान कट जाता है तो एक पब्लिक में एक मैसेज जाता है जो बहुत बड़ा डिटरेंट के तौर पे काम करता है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ उस जिले में? ये जो साइनेज आप देख रहे हैं हर ऑफिस में हर जगह लगने शुरू हो गए, और फाइनली मुंगेर जो है स्मोक फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ था। आप ये देखिए, मीडिया स्टोरी ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के ऊपर एक स्टोरी है। दुकानों पे इस तरह के साइनेज सेक्शन 6A के लगने शुरू हो गए सभी जगहों पे, और मुंगेर स्मोक फ्री डिक्लेयर हुआ। काफी मीडिया ने बढ़ चढ़ के उसको खबरों को छापा था, देशी नहीं विदेश में भी, क्योंकि मुंगेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहाँ पे ITC का बहुत बड़ा यूनिट है, सिगरेट यूनिट। विल्स नेवी कट सिगरेट, अगर आप लोग नाम सुने हो तो विल्स नेवी कट मुंगेर में ही बनता है, और वही जिला था जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टारगेट करके उसको DM ने डिक्लेयर किया था स्मोक फ्री। उसी तरह एक बार पटना में जो जितने भी बड़े व्यापारियों का के साथ एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और PMC, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक मीटिंग करी। हम लोग को भी बुलाया गया था उसको, उस मीटिंग में, और उनको आगाह किया गया, उनको बताया गया कि भाई कि सेक्शन 5 में ये जो आप जो एडवर्टीजमेंट करते हैं दुकानों के ऊपर, वो प्रतिबंधित है। अब इस खबर को अखबारों ने बढ़ चढ़ के छापा, कई न्यूज़पेपर्स ने छापा, और जब ये खबरें छपी उसके बाद से आप ये देखिए कि जो बोर्ड लगे हुए थे उस दुकान पे उस हटने शुरू हुए। साइड में आप देख रहे होंगे गोल्ड फ्लैग का बोर्ड लगा है, बगल में क्लीन है, बिफोर एंड आफ्टर। ये इम्पैक्ट है मीडिया का। इसमें किसी भी तरह का इन्फोर्समेंट ड्राइव अभी तक नहीं चलाया गया, बट वो मैसेज गया, वो मैसेज जो पर्कुलेट होता है मीडिया के माध्यम से, और उसका ये इम्पैक्ट है। आप ये देखिए हर जगह ये होने शुरू हो गए, गली मोहल्लों में, छोटे छोटी गलियों तक में से उतर गए थे उस जमाने में। और पटना स्मोक फ्री डिक्लेयर हुआ था, पटना DM ने डिस्ट्रिक्ट को स्मोक फ्री डिक्लेयर किया था, और उसमें उस टाइम पे टैक्स फ्री भी हो गया था पटना पूरी तरह से। पटना के बाद ये खबर दरभंगा में या और भी जगहों पे जब ये होर्डिंग्स वाली बात, टैप्स वाली बात गई, तो वहां भी ये सब हटने शुरू हो गए थे बोर्ड्स। आप ये देख लीजिए 3 फोटो, पहले कैसा था हटते हुए और बाद में कैसा। अब ये बताइए, सूरज वैष्णव होटल, उस पे गोल्ड फ्लैग का बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? कंपनी वाले तो लगा देते हैं, बेचारे दुकानदारों को कानून का पता होता नहीं है, और इनको साथ में 1000, 2000, 5000 रुपया जगह लोकेशन के हिसाब से इनको रेंट भी देती है टबैको इंडस्ट्री। और जब इनको पता लगा कि भाई ये 2000, 5000 के चक्कर में हम नप जाएंगे, हमारा चालान कटेगा, हो सकता है केस हो जाए, तो इन्होंने फटाफट हटाना शुरू कर दिया। और अब ये देखिए सूरज वैष्णव होटल का बोर्ड लग गया। दरभंगा भी सिमिलरली स्मोक फ्री डिक्लेयर हुआ था। अब ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर, BDOज होते हैं, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं अपने ब्लॉक लेवल के, इन्फोर्समेंट स्क्वाड के अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, और वही BDO साहब बेचारे, ऐसे ही हम लोगों ने एक वर्कशॉप करा था मुजफ्फरपुर जिले में, और वर्कशॉप के बाद निकले और कैंपस से निकलते हुए उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। किसी की तलब होती है तो वो तलब उनको लगी थी। अब जैसे ही वो अब अखबार में एक खबर छप गई, किसी मीडिया वाले ने क्लिक कर लिया, अगले दिन DM साहब ने उनको चालान करवाया। तो ये उसी BDO साहब का जुर्माने का चालान। अब बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, वहाँ DM साहब खुद निकल गए इन्फोर्समेंट ड्राइव के लिए। अगर DM किसी जिले में निकल गया खुद से इन्फोर्समेंट ड्राइव के लिए, तो ऑब्वियस है कि अखबार वाले उसको तो बढ़ चढ़ के छापेंगे, और अगर 2-4 चालान उन्होंने काट दिया तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, और इसका एक फायदा होता है टबैको कंट्रोल में जबरदस्त, जो आपको देखने को हम लोग को मिला। और जिले मैंने बिहार का 16th डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी था जो धूम्रपान मुक्त घोषित हुआ। और जो भी धूम्रपान मुक्त, जो स्मोक फ्री डिक्लेरेशन होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SP, सिविल सर्जन,
जो डीटीसी या कहीं पे सीडीओ यूपी वगैरह में कहते हैं, जो नंबर 2 होता है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट आईपीआरडी के जो ऑफिसर, ये 7-8 लोग, म्युनिसिपल अथॉरिटी के लोग, इस सब मिल के उस पे एक ज्वाइंट सिग्नेचर करके एक ये घोषणा पत्र निकालते हैं और उस पे साइन होता है। ये सब जगह लोगों को सर्कुलेट भी किया जाता है ताकि एक अवेयरनेस भी हो। तो इस तरह से अब तक बिहार में आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट 23 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड स्मोक फ्री because of but the role of there is only media was not involved. There are certain other law enforcers training हुई है, उनका enforcement drive चला है, बट मीडिया ने एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है इस तमाम चीजों में। और ये जो आप ग्रीन शेडेड देख रहे हैं, बिहार में इतने जिले अब तक स्मोक फ्री डिक्लेयर हो चुके हैं। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो प्रेवलेंस 2009-10 में गैट्स 1 में 53.5% हुआ करता था, 16-17 में, जब 18 में जब डेटा ये रिलीज हुआ था, तो वो घट के बिहार 25.9% पे आ गया था, हाईएस्ट अमॉन्ग द स्टेट्स इन द कंट्री, हाईएस्ट रिडक्शन जो हुआ है। और ये आप एक ग्राफ देखेंगे स्टेट वाइज अगर इसको, तो हाईएस्ट रिडक्शन जो डिप है वो सिक्किम में है, बट सिक्किम बीइंग ए स्मॉल स्टेट, नेक्स्ट डिप आप बिहार का देखेंगे तो काफी नंबर घटे, बिहार में घटे, और उसका इम्पैक्ट नेशनल एवरेज पे भी पड़ा था। कुछ नेगेटिव मीडिया स्टोरीज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि, और अखबार वाले भी उसको कोशिश करते हैं कि छापने की। अब देखिए, धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई में फिर बाद में जब इतना सारा हो गया, इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, तो फिर थोड़ा सा ढीला पड़ गया मामला। प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण का, तो बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कई बार, स्टेट वाइज ये जो डेटा आया, तो उसका नेगेटिव जब पड़ता है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में जब ये जाता है तो बड़ा वो उनको एम्बैरेसमेंट फील होता है। और अब ये देखिए, इन्फोर्समेंट ऑफ टोबैको नियर स्कूल पुअर इन झारखंड एंड बिहार, 38 में से 32 जिलों ने नहीं काटा एक भी चालान। ये आफ्टर दैट गैट्स टू रिलीज, ये इस तरह की चीजें होने लगी। फिर जब गवर्नमेंट ने फिर इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया, और फिर से अभियान, बिहार में चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हर साल रिव्यू होता है इस प्रोग्राम का, साल में एक बार हाई लेवल कंसल्टेशन की जाती है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम SLCC मीटिंग। तो उसका इम्पैक्ट होता है कि अगर चीफ सेक्रेटरी लेवल पे इसकी रिव्यू होती है तो ऑटोमेटिक सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलर्ट मोड में चले जाते हैं, और वो सारे लोग फिर अपने अपने जिले में ये कंप्लाइंस शुरू करवाते हैं। कई बार बिहार में ऐसा हुआ कि एक हफ्ते का कंटिन्यूस ड्राइव पूरे बिहार में, पूरा एक हफ्ता तक लगातार सभी जिलों में इन्फोर्समेंट ड्राइव चला, ज्वाइंट ड्राइव चला। तो ये सब का फैक्ट बड़ा फर्क पड़ता है अगर इस तरह के नेगेटिव मीडिया स्टोरीज अगर छपने लगते हैं तो। सूबे में ठप पड़ गए तंबाकू नियंत्रण के सारे प्रयास। तो हमने एक बार क्या किया, 2019 में हमारी टीम ने पूरे एक साल तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरा मीडिया की मॉनिटरिंग करी, और उसका जो मीडिया स्टोरी का जो साइज था हर न्यूज़पेपर में, तो वो साइज को कैलकुलेट किया गया, और रीडरशिप के हिसाब से उसको जब कैलकुलेट किया गया तो वो टोटल 1,18,22,805 इतने रीडर्स ने वो सारे न्यूज, टोबैको कंट्रोल रिलेटेड न्यूज पढ़े, देखे। दैट इज अबाउट 37% ऑफ ऑल एडल्ट इन द स्टेट। और जब उस स्पेस को जब मॉनिटरी टर्म्स में ट्रांसलेट किया गया कि अगर आप पेड मीडिया करते उतने स्पेस में, अखबारों में देते एडवर्टीजमेंट, तो कितना पैसा लगता, तो वो जब कैलकुलेट किया गया तो 1,89,40,800 के करीब ये, और $2,91,397 ये एक साल में इतने स्पेस को अर्न मीडिया से हम लोगों ने यूटिलाइज किया था टोबैको कंट्रोल में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि जो ग्रांट साइज होता है वो इसका आधा भी नहीं होता है, और जितने का ग्रांट साइज था उससे ज्यादा मीडिया स्पेस का वो मॉनिटरी टर्म्स में वो उतना जगह और मीडिया से हम लोगों ने उसको मॉनिटर करके निकाला था। सो
हम सभी लोगों को, यही वो तबका है, यही वो यंग जनरेशन है, we all need to work together. Let's join hands to save our future generation and to protect this generation, ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य हो, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन हो, वो टोबैको फ्री जनरेशन के तौर पे जाना जाए. और दिस इज ऑल अबाउट. थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग. थैंक यू वेरी मच. So thanks a lot, Deepak ji. You have done a commendable job in your states. Ajay, Yeah. Mr. Arun Verma, you may please. No, but I just wanted to convey my thanks to a very enlightening presentation by Dr. Deepak Mishra ji, Yeah. because it is supported with all the documents and the press media reports, and very nice. And the colossal work they have done. Bihar and the UP has been known as a notorious for using smokeless tobacco, at least, because anybody coming from Bihar or UP in Punjab or Haryana, we all want Yeah, them using this. it is actually difficult to You have work. done a great job. They have done. Bihar has done a great job, I must say. No. So, Doctor, Dr. Rakesh Gupta, would you like to make some comments on the presentation given बस by मैं Dr. एक Deepak सिर्फ Mishra? कमेंट करना चाहता था कि it is very commendable that because of the media stories, 37% of the adults in the state have Yeah. been reached, and earned media cost is about 2 crores. That is commendable. So over to Dr. Rakesh Gupta for his comments. So we are waiting for the chief guest, but till then, I think we can have some discussion. Thanks, Rakesh ji. And I think what Deepak ji has contributed in terms of engagement of the media in tobacco control is definitely on the forefront in tobacco control in India. The coverage that media provides to his work, I think, is most extensive. It's very commendable as well. And I think in his presentation, he has given lots of newsworthy items as well as those which had the impact from the advocacy purpose. I consider that it's important, and I have been asking him this, that you should share your process with the media as to how you can engage the media in such a nice way, so that those who are working in tobacco control in other states also can work to replicate what you have done. Because I think, as you rightly said, media has the huge impact on all the other stakeholders in tobacco control. So I think that is one point which I find was missing in your presentation, and maybe you can make it now, since we have the time, as to how do we engage media for becoming the tool for advocacy, and not only creating just a news out of our activity. I think that is what we require. I also feel that now is the time when we must consider taking up tobacco control to a different level, where we should start thinking of the end game for tobacco through the processes like tobacco vendor licensing, which you have done in Ranchi again. So I think that is very commendable. Tobacco-free generation is another one. I think getting the perspectives of the retailers on the control of tobacco and the enforcement issues. So I think we do need some more inputs, especially with your engagement into the research aspect of the media advocacy in tobacco control. So these are some of the initial thoughts which I thought may help the participants in this group as well. And my own experience is for last over 2 decades with media through all the channels, whether it's print media, whether it is television, whether it's radio. I had also created a kind of longest series in the country, maybe in Asia, I don't know, globally as well, where we had published some 145 articles covering half page of the Sunday feature of the local newspaper, which is published every day, morning, evening edition. So, which helped me to bring out 2 books actually in the form of for the tobacco control in Hindi. But I consider it's the time now that with your reach and with your impact on the media,
that you take it to a different level. This is my suggestion, and I want your response to it as to, I don't know your situation, so perhaps you can tell me better. नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, Welcome. आई एग्री विथ इट। और ये कोई एक दिन में ऐसा होता नहीं है, जी, बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत टाइम लगाना होता है। दो तीन बातें, अच्छा राकेश सर, इस ग्रुप में हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और कौन कौन से हाँ लोग हाँ, हैं? सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। करेक्ट, ठीक है। हाँ। देखिए, होता क्या है कि हम सिविल सोसाइटी ग्रुप बहुत ही इनिशियली, जिसको आपके बारे में नहीं पता है, वो आपको, जैसे पुलिस अगर किसी से भी मिलती है तो उसको शक के निगाह से देखती है और उसको एक्यूज्ड ही समझती है कभी भी। उसी तरह से मीडिया में एनजीओज का रेपुटेशन इज वेरी निगेटिव, और इन जनरल परसेप्शन, इस बात को हमको एग्री करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए। तो लेकिन होता क्या है कि आपको एक बार उनके साथ बैठ के, उनके साथ क्लोज एसोसिएशन बना के उनको दोस्त बनाना है। बेसिकली सबसे पहले उनको दोस्त बनाना है। अच्छा, कोई भी आप इतना सारा आप देख रहे होंगे, इतने सारे न्यूज क्लिपिंग्स आपने देखे, बहुत सारे इवेंट के न्यूज क्लिपिंग्स। अब वो होता क्या कि मीडिया को बहुत सारे पॉलिसी इशू को या जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो अगर आप बीइंग ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, आप उनसे दोस्ती करें, उनके पास तक अगर वो कागज आप देते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्डर निकलता है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो ही जाता है वो, और वो उसको लेके उससे एक स्टोरी बनाएंगे। उसी में अगर आप अगर चीजों को जनरलाइज करेंगे तो एक अलग मसला है, लेकिन आपको कुछ दोस्त बनाने पड़ते हैं अलग अलग। जैसे आपको कोई ऐसा कोई स्टोरी मिला जो आपने किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आपने दे दिया, तो वो किसी मीडिया हाउस को दिया, वो मीडिया हाउस वाला अगर उसको एक्सक्लूसिव स्टोरी बना के अगर वो अगर वो छपता है अखबार में, तो अगले दिन वो आपके लिए, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और आपका वो बड़ा फैन हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे आपको उसको अपना एक उसी तरह से कल्टीवेट करना है बेसिकली, नंबर वन। नंबर टू, एनजीओज का, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव परसेप्शन नहीं शुरू में रहता है, तो वो परसेप्शन आपको क्रिएट करना है। तो आपको जो भी करना है, बीइंग ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी हमारी भूमिका अलग अलग तरह की है। कई बार हम वॉचडॉग के तौर पे काम करते हैं, कई बार हम सरकार के सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, कई बार हम एक्टिविज्म वाला काम करते हैं। तो मोस्टली सरकार के जो काम है उसमें अगर आप एज ए सप्लीमेंट या कम्प्लीमेंट के तौर पे काम करते हैं या कोलैबोरेटिव एफर्ट से काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी रीच बढ़ जाती है, और सरकार के कामों को छापने के बहाने आपको भी उनको छापने की मजबूरी हो जाती है। और धीरे धीरे होता क्या है कि इस तरह से वो आपके साथ एक अलग रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। आज की तारीख में जैसे बिहार हो या झारखंड हो, हम कोई भी इवेंट होता है तो उसमें प्रेस रिलीज हम बना के देते हैं उनको। इवन आईपीआरडी के साथ आपको कोलैबोरेट करना है। जो डिस्ट्रिक्ट में जो जनसंपर्क विभाग होता है, सूचना जनसंपर्क विभाग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, वो चाहे स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करके अगर उनके थ्रू आप पिच इन करेंगे मीडिया को, अपने प्रेस रिलीज को या अपनी बातों को, तो उसका वाइडर कवरेज होता है। आपसे दो चार मीडिया के जर्नलिस्ट से दोस्ती हो सकती है, उसमें से चार में से हो सकता है कि उसका चार में से किसी तीन का एडिटर बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे मतलब का नहीं है कि वो एक एडिटर छापेगा। लेकिन अगर वही न्यूज आइटम आईपीआरडी के माध्यम से, आईपीआरडी के थ्रू अगर सर्कुलेट होता है, तो ये मजबूरी हो जाती है उनकी सभी मीडिया हाउसेस को उसको कवर करने की। तो इस तरह से थोड़ा रीच बढ़ जाता है। Deepak ji, thanks a lot for the discussion, and Dr. Rakesh Gupta, we are thankful to you also. So now we have our chief guest with us, Ms. Shipra Bansal. So Ms. Shipra Bansal, I may just confirm if she has joined. Hello. भैया नहीं दिखाई, देखो, दिखाई नहीं वो थोड़ी वॉल्यूम ज्यादा करके देखो।
ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। एक सेकंड। नहीं, वो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट लेट अस जॉइन एटलीस्ट। अच्छा अच्छा, चलो उतनी देर उनको तो बोला कर अपनी लो। वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें। अच्छा, वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है मैडम का, दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। आ गई है मैडम, हाँ। हाँ, ऑडियो ओके, नहीं कर, मैं देखता हूँ। अच्छा नरदीप, हाँ कर दो। एक्चुअली शी इज नॉट एबल टू लिसन टू अस। तो मैं आप अपनी डिस्कशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ तो हाँ, आई बेटर, आस्क Pradeep to check if there's any problem. ठीक है। Okay, you can चलिए, continue with the discussion. या डॉक्टर दीपक जी। तो दीपक जी, डॉक्टर गुप्ता सर, जो आपके जो सवाल थे कुछ इसमें क्या, मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कोशिश की है आपको जवाब देने की। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि हमको सरकारी पीआर एजेंसी के साथ काम करते हैं तो उसका फायदा निश्चित रूप से ज्यादा मिलता है, क्योंकि आमतौर पे अगर आप अपने लेवल पे एक्टिविटी करते हैं तो कई बार जो प्रमुख समाचार पत्र हैं वो उसको नहीं छापते हैं। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा सामंजस्य अगर बना आवाज नहीं आ रहता रही है है। सरकारी तंत्र से तो वो डेफिनेटली यूजफुल रहता है। मैडम ने वापस ज्वाइन कर लिया है, म्यूट पे है, मैडम बस ने ज्वाइन कर लिया है। आई म्यूट डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। म्यूट। नमस्कार सर। हाँ जी, मैडम आप हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है हमें। नहीं, अब आ रही है सर, आपकी भी आ रही है। अच्छा अच्छा, एंड आई एम ओके। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट। No, it is all right. I just want, I will introduce you to the participants. So we have our chief guest, Ms. Shipra Bansal. She is the chairperson of the CCPCR, that is Chandigarh Commission for Protection of the Child Rights. She is an active social worker, choreographer, and writer of City Beautiful Chandigarh, ex-nominated councillor of Chandigarh. She is highly qualified as Masters in Mass Communication, MBA in HR, and Master in Sociology. She also holds degree in law. She has committed herself to serve the society and become a voice of the youth. So we request you, ma'am, just let us know how CCPCR can help in tobacco control. Thank you. Sir, first of all, तो I'm really grateful to SIFA for inviting me in such an important session, which is in need of an hour. Actually, which is I believe कि हर एक बच्चे को आज इसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। और आपके जितने भी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर सोनू गोयल जी, अरुण जी, मिस्टर दीपक मिश्रा जी, एंड सॉरी एंड इफ आई एम मिसिंग एनीवन, एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर राकेश जी, आई एम thankful to whole team. As you have asked, कि CCPCR is a commission which is actually working for a very sensitive and very responsible role which we are playing. तो सिफर के साथ already we have conducted so many inspections. सर, अगर मैं अपने एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि टबैको एक वो चीज है विच इज अ ग्राउंड लेवल for reaching of any student or anyone, whether it's a male or female or anyone, towards the drugs. क्योंकि सबसे पहला एक वो हमारा जो कहते हैं ना, पहली पौड़ी है ये हमारी। तो टबैको पे अगर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड मोर ओवर सर, हमारे जो नॉर्मल, जो मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में भी देखा है, जो शायद आपके इसमें भी आज एक डिस्कशन का मुद्दा भी रहा है, कि हमारे जो ये टबैको के जो छाबे हम जिन्हें बोलते हैं, वो जो लगने चाहिए वो 100 यार्ड से आगे लगने चाहिए। पर सर ये बहुत जगह हम देखते हैं, चंडीगढ़ में चलो फिर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, बट देयर आर सो मेनी प्लेसेस कि जो स्कूल्स के बहुत ही आसपास लगाए जाते हैं। वो आप ये नोट करेंगे, कुछ साल पहले, 2 साल पहले, जो ये 23 और 36 सेक्टर वाला है, वहां पे वो बैठते थे। वो रात के 12 बजे तक वो पर्सन बैठते थे। तो आप ये देखिए कि 12 बजे तक उनका बैठने का एक ही मकसद होता है, बिकॉज दे आर द डीलर्स इन ड्रग्स एंड ऑल। तो इन चीजों पे हमारा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और या कमीशन, सब लोग अपना एक्टिवली रोल तो कर रहे हैं, पर उसके बावजूद जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको इसके तरफ अपना बहुत ज्यादा रुझाव देना पड़ेगा।
हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे छोटे-छोटे भी, अगर हम पेरिफेरल एरियाज़ में भी देखें, हम ये नहीं कह सकते कि चंडीगढ़ इन चीज़ों से अछूता है। ये उन लोगों की एक नेचर बन चुकी है कि अगर उनकी फैमिली में कोई टोबैको भी यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि दिस इज़ वेरी अ कॉमन थिंग। उसमें अगर वो लोग उसमें स्पेशली लिखा होता है कि इट इज़ वेरी इंजurious टू हेल्थ, बट स्टिल दे आर एडिक्टेड टू इट। तो इस चीज़ के लिए हमारी रेगुलर अवेयरनेस भी चलती हैं, इंस्पेक्शंस भी होती हैं। इंस्पेक्शंस के दौरान जो ई-सिगरेट्स वाला मामला आता है, सर बड़ा शॉकिंग लगता है कि ई-सिगरेट्स को लेके शायद जो बड़े एडल्ट्स हैं, उन्हें भी नहीं पता, बट ये छोटे-छोटे बच्चों को पता है। ई-सिगरेट्स पे बहुत ज़्यादा मतलब बैन है, इसमें 7 इयर्स की इम्प्रिज़नमेंट भी है। उसके बावजूद वो लोग फिर भी उन्हें परचेज़ कर लेते हैं और वो हमारे सामने केसेस भी आते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारी तरफ से, कमीशन की तरफ से एंड फ्रॉम द होल डिपार्टमेंट यही रहता है कि हम इन पे रेगुलर म्यूट हो गए मैडम? Madam, are you muted, ma'am? हेलो? मैडम हाँ, या नाउ यू कैन So कम। now you can continue, please. हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए आप। मैडम शिप्रा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, आप, so you can continue, please. अगर आपने कुछ अभी बताना है तो मैडम वी आर लिसनिंग टू यू। हेलो? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हमें आवाज आ रही है आपकी। हाँ, बोलिए प्लीज। ओके सर। हाँ हाँ। तो सर मतलब यही है कि जो कमीशन कर रही है, वो वो कर रही है जो भी करना है काम। स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में मतलब मोबाइल्स भी बैन्स हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल्स में मोबाइल्स बैन्स हैं, पर उसके बावजूद भी आप कई बच्चों के पास ऐसे-ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे-ऐसे गैजेट्स हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि जितना आप अवेयरनेस करेंगे, जितनी आप जन भागीदारी करेंगे, ये उतना ही बेहतर होगा कि हम अपने आने वाले जनरेशन को, आने वाले अपने भविष्य को इन चंगुल से बचा सकते हैं। अब सर जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, उनके लिए एक दूसरी चीज़ आती है रिहैबिलिटेशन, जो हमारे सेंटर्स भी बनते हैं। पर हर किसी को हम उसमें सर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में तो भेज नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ये बनता है कि अगर हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो दौर है, सबका बिज़ी शेड्यूल है, किसी के पास समय कम है, किसी के पास नहीं है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बहुत चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती थी। पर आज के दौर में जो चीज़ें हैं, तो उसमें कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। नो डाउट, नो पेरेंट्स इज़ टर्निंग एनी स्टोन लेफ्ट, बट क्या होता है ना सर, वो बच्चे आजकल मोबाइल पे क्या देख रहे हैं या वो गैजेट्स पे क्या वॉच कर रहे हैं। अब जैसे जो हमारे पास केसेस आते हैं कि ई सिगरेट्स के तहत उन्होंने परचेज कर लिया। अब पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि उन्होंने ऑनलाइन कुछ परचेज किया और उसमें वो क्या आया। तो इन चीजों को लेके पेरेंट्स को चेक करना बड़ा जरूरी है। इसमें सर हमने अभी लास्ट वीक ही एक एडवाइजरी जारी की है सारे स्कूल्स को, कि जिसमें साइबर सिक्योरिटी को लेके उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी में सर अगर मैं आपको छोटी-सी चीज़ें बताऊँ कि एक तो उन्हें ये हमने बोला है कि पेरेंट्स ये चीज़ का ध्यान दें कि जो उन्होंने घर पे अगर ऑनलाइन बच्चे कुछ भी क्लासेस भी लगाते हैं या कुछ भी अटेंड करते हैं, तो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स लगवाने पड़ेंगे। कि वो कौन-सी वेबसाइट देखें, कौन-सी ना देखें, तो उसमें बहुत सारे सर सिक्योरिटी सिस्टम्स आ जाते हैं। इसके साथ साइबर सेल के साथ मिलके हमारी रेगुलर अवेयरनेस तो चल ही रही है एंड मोर ओवर इन द मंथ ऑफ दिसंबर हम लोग इसको बहुत ही लार्ज लेवल पे एंड दैट टू ऑन अ ग्राउंड लेवल कि हम एक-एक स्कूल में पहुंचे, एक-एक कोशिश करेंगे कि हम पेरेंट्स से भी बात करें। तो वो चीज़ भी हम साइबर सिक्योरिटी को लेके आधी प्रॉब्लम तो सर वहीं से आती है। अगर आप उन्हें सपोज़ बाहर बच्चे को पैसे नहीं देंगे, बच्चा नहीं लेगा। पर आजकल इतने मीन्स हो गए हैं कि वो ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। तो ये एक-दूसरे की जो इनकी कंपनी रहती है, एक-दूसरे का ये सपोर्ट रहता है, ये प्रॉब्लम है। Sir, being into the commission
मैं ये मानती हूँ कि सही और गलत में बिल्कुल हल्का-सा फ़ासला होता है। इन बच्चों को ये समझ में नहीं आती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ आती है कि अगर उनसे थोड़ी-सी चूक हुई, वो वही गलती उनका एक ऑफ़ेंस बन जाएगी और वो उनकी सारी उम्र के लिए उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाएगी, उनके लिए प्लस उनकी फ़ैमिली के लिए। अगर मैं बात करूँ पॉक्सो की, पॉक्सो में नो डाउट हम सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेते हैं, पर सेक्सुअल ऑफेंसेस से हम क्या समझते हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत बात भी की या किसी ने गलत कमेंट भी किया, आजकल सर एक तरफ से अच्छी बात है कि चंडीगढ़ के लोग और चंडीगढ़ के बच्चे बहुत वोकल हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी हिडन कंप्लेंट्स आती हैं कि जिसमें ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है, उनकी काउंसलिंग के बाद वो सॉर्टेड हो जाती हैं। बट सर कहीं न कहीं ये है कि बच्चों को पर ये नहीं पता है कि वो करते-करते ये इतने ज़्यादा वो सिवियर हो जाते हैं कि उन्हें यही नहीं पता चलता कि कब वो ऑफ़ेंस हो गया और वो बेचारे बच्चे हमारे जे-जे होम में चले जाते हैं। तो सर कहीं न कहीं वो एक ट्रॉमा तो उनकी लाइफ़ में वो रह जाता है। हम उन्हें चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कि आप वापस इस चीज़ में आएँ। तो इसके लिए मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, ऑलरेडी आपने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक जो आपने प्लेटफ़ॉर्म दिया है। तो इसमें यही रहेगा कि आप भी छोटे-छोटे क्लस्टर लेवल पे जहाँ पे भी आपको लगे कि आपकी अपनी सोसाइटीज़ होती हैं, आपकी आरडब्ल्यूएज़ भी हैं, उनमें भी अगर आप इन चीज़ों को लेके बात करें, साइबर सिक्योरिटी को लेके बात करें, बच्चे मतलब क्या खरीद रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सर हमें लगेगा कि वो चॉकलेट खा रहे हैं बट वो एक्चुअल में निकलता कुछ और है। तो इन चीज़ों को लेके आप सबके सहयोग और ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा काम आसान हो जाएगा सर। जी। So thank you, मैम। तो मैं आपसे ये एक तो थोड़ा इंट्रोड्यूस मैं करना चाहूंगा कि मिस्टर दीपक मिश्रा इज विद अस। So he is executive director of NGO, which is named as Seeds India. तो ये बिहार में और झारखंड में काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ही हैज गॉट वेरी गुड रेपो विद द प्रिंट मीडिया। मतलब प्रिंट मीडिया का इतना अच्छा रेपो है कि इन्होंने एक स्टडी की अपना कि जो अर्न मीडिया है उसमें कितना अर्न किया। सो अर्न मीडिया इनका तकरीबन जो भी इनका कवरेज हुई दैट वाज इक्वल टू 2 करोड़। इफ अगर एडवर्टाइजमेंट देनी पड़े तो एक साल में 2 करोड़ के करीब होगी। और दे कुड रीच 37% ऑफ द अडल्ट्स इन बिहार। सो दैट इज आई थिंक कमेंडेबल। एंड ये टोबैको कंट्रोल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी वी हैव डॉक्टर राकेश गुप्ता। ही इज फ्रॉम जयपुर। ये राजस्थान कैंसर फाउंडेशन से, ही इज ऑन्को सर्जन। और ये अभी काफी देर से टोबैको सेसेशन पे काम कर रहे हैं, मतलब कैसे लोगों को टोबैको की आदत से छुड़ाना है। मिस्टर अरुण वर्मा, ही इज डायरेक्टर फाइनेंस एंड डायरेक्टर ऑपरेशंस इन साइफर। ये पेशे से तो इंजीनियर है, मगर ही इज वेरी पैशनेटली joined aligned with us for tobacco control। और यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं हमारे इम्पोर्टेंट जो पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर अरुणा है, डॉक्टर सिद्धि हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनका डॉक्टर राम प्रसाद है हमारे साथ, ये मणिपाल से जुड़े हैं। और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम अभी देख नहीं पा रहा हूँ। सो इट इज वेरी गुड। और हम आपसे ये चाहेंगे क्योंकि जैसे मैडम हरजिंदर कौर, शी वाज चेयरपर्सन, शी वाज वेरी क्लोजली अलाइंड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन और हमने बहुत कुछ मिलके किया है, तो हम आपके साथ भी उसी तरह कंटिन्यू करना चाहेंगे। और हम सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन आपसे है कि जैसे कॉटपा का सेक्शन 6 है जिसमें कि बच्चे जो माइनर्स हैं ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं तंबाकू, और ना ही 100 गज के दायरे में कोई भी दुकान हो सकती है तंबाकू की। इसलिए हम चाहेंगे कि आपके पास पुलिस फोर्स भी है आपके अंडर, तो आप उनको कह के आप कोई एक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा पीका एक्ट का आपने बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इज बैंड एवरीवेयर इन इंडिया, मगर ये कि ऑनलाइन सेल जो है इसकी अभी भी चालू है, तो उसके लिए भी आपकी हम मदद चाहेंगे। और तीसरी चीज है हुक्का बार्स। हुक्का बार्स जो Chandigarh has become, I think, 9th or the 10th state in India which has banned hookah bar through changes in the COTPA। तो ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये कि इसके इन्फोर्समेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा, और इसके लिए हम चाहेंगे इसकी CCPCR अपने जो पुलिस बल आपके साथ है तो उसकी मदद से इन पे हम थोड़ा काबू पाएं। तो ये चीजें मैं जरूर चाहूंगा आपसे।
So, Dr. Aruna, will you like to say something? In very brief, just 2 minutes. Yeah. You are muted. You are muted. Muted. Yeah, thanks a lot for the speech, ma'am. Like, if at all a child is found using the tobacco in the school premises, or else is reported to be using tobacco, so how through the school like helping them towards cessation? Can you repeat the question, please? Yeah, sir, like if at all a child reports the use of tobacco, and then if some tobacco product has been found in the possession, so Yeah. how they're like through the school authority, they're helping them towards the cessation. So actually, Madam Shipra is joined just now as a chairperson in the CCPCR, but I think we will meet tomorrow. I and Mr. Arun Verma will try to meet her tomorrow at about 3, and then we'll sensitize her about this issue, because tobacco cessation, definitely a person using tobacco, maybe adult or a young child. So tobacco cessation is definitely required. So we'll talk to her about that also. And we have there were questions from Dr. Sahana also. There were questions that how to bring on board the print media. तो इसके लिए साना जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि since दीपक डॉक्टर मैडम मिस्टर दीपक मिश्रा has worked a lot in this field, so you can talk to him directly also, but I'll just say that you need to have lot of rapport with the print media. Only then they will come on board. So Dr. Ramprasad is with us. Dr. Ramprasad, will you like to say something, some concluding remarks, please? He's from Manipal. I think he's not with us. So anybody else, Dr. Rakesh Gupta, very brief concluding remarks. ये अवसर है मैडम को एड्रेस करने का, और मुझे लगता है कि जो तंबाकू मुक्त पीढ़ी का इनिशिएटिव अब भारत में कुछ स्टेट्स में चला है, जिसमें हरियाणा भी एक है, तो हम लोगों ने भी शुरू किया राजस्थान में। और कंसेप्चुअली इसका मतलब ये है कि एक निश्चित जन्म तिथि के बाद, उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2011 ले लेते हैं, उसके बाद जो जन्मे हुए बच्चे हैं वो जीवन पर्यंत कभी भी तंबाकू उपभोगी नहीं होंगे। तो ये लगता है कंसेप्चुअली कि ये एक अच्छा मैथमेटिकल मॉडल है, जिसमें आने वाले समय में तंबाकू खाने पीने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। और ये क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सामाजिक समर्थन भी मिलेगा, सरकार भी इसको समर्थित करेगी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए। ये एक तरह से मानवाधिकार, चाइल्ड राइट्स का भी मामला है। तो मैडम का क्या विचार है, और अगर अभी बात कर सकें तो ठीक है, नहीं तो कल आप थोड़ा उनको अप्राइज कर दीजिए। Yeah, Dr. Rakesh Gupta, I'll request you to please send me a half-page note. So when we meet her, तो we'll discuss. This is very important. मैडम ये ना आपके लिए बहुत आसान है काम करना, टोबैको फ्री जनरेशन। और यूटी एक ऐसा मतलब स्टेट तो नहीं है, इट इज अ यूनियन टेरिटरी, और इसमें ये संभव भी है क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं है। So we'll let you know about how you can go about it. So Dr. Deepak want to speak. सर इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने डॉक्टर राकेश जी ने कहा कि वो जो पॉइंट्स हैं और आपने कहा कि हमें तो इनफैक्ट अगर आपको कोई भी लगता है कि जो एक ऐसी रिकमेंडेशन है इसके लिए जो पॉलिसी यहाँ पे या कुछ ऐसी चीज जो यहाँ पे शुरू होनी चाहिए, तो अगर आप हमारे साथ बैठ के वो डिस्कस करें तो हम एक बारी कोशिश कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज बीइंग वेरी सपोर्टिव, और इस चीज को लेके वो हमेशा से वो रहते हैं कि इसको हमें कंट्रोल करना है या कुछ भी प्रॉब्लम, सर जैसे अभी फेस्टिव आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बढ़ावा दे देती हैं, तो इस चीज पे आपको जो भी बेस्ट लगेगा तो प्लीज दैट इज ऑलवेज वेलकम्ड बाय द कमीशन, और आपका सहयोग हमेशा से सर साथ होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम बात करेंगे जो भी हमारे से बेस्ट हो पाएगा, बिकॉज व्हेनेवर इट्स अ मैटर ऑफ अ चाइल्ड वी आर ऑलवेज देयर 24/7। Yeah. So thank you, ma'am. I think ये जो डॉक्टर राकेश गुप्ता ने, he is very passionate about this end game tobacco और tobacco free generation, ये बड़ा doable thing है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं हम शुरू नहीं कर सकते। So why not start from Chandigarh, which has been the first smoke free city? तो I think we'll discuss with you tomorrow. So दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी दीपक जी। मैं वो टोबैको फ्री जनरेशन के लिए ही आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ। अभी रिसेंट लास्ट मंथ एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने
एक के साथ हमने मिलके काम किया था। उसमें मिनिस्ट्री के तरफ से बहुत ही एक डॉक्यूमेंट टोबैको फ्री जनरेशन का एक रोड मैप उन्होंने रिलीज किया है। Oh, that is great. हाँ जी, तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सर? हाँ हाँ, मेरे को दिख रहा है। तो आप ना ये मेरे साथ ये पूरी जो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको जो भेज भी है, दूंगा। उसमें हाँ। आपको मैं दिखाता हूँ। उन्होंने जो रोड मैप एक डेवलप करके हम लोगों का मदद लिया है उन्होंने। ये है रोड मैप अच्छा 2030 तक। हाँ 2030 तक का उन्होंने एक टेंटेटिव एक प्लान किया है हम्म, कि 2023 में एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी उन्होंने करा है। और ये फिर पूरा एक रोड मैप उन्होंने बनाया है। और ये चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक प्लान किया है, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने, तो हाँ जी इसको वी कैन कोलैबोरेट विद आवर लोकल रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आवर हाँ रेस्पेक्टिव स्टेट एज वेल। और उनके साथ मिलके हम लोग इसको, इस चीजों को, मुद्दे को भी और आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम का तो एक होल हार्टेड सपोर्ट हाँ। दिख रहा है कि बिल्कुल है। और उसके अलावा हम लोग स्कूल एजुकेशन के साथ भी इन चीजों को वी कैन टेक इट अप। या डेफिनेटली ये दीपक जी, अगर आप मेरे को ये डॉक्यूमेंट शेयर कर लें, हाँ, और कर डॉक्टर दूंगा राकेश सर। गुप्ता भी मेरे साथ थोड़ा सा पॉइंट शेयर कर लेंगे, सो वी कैन टॉक टू मैम टुमारो। Yes. श्योर, सर मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आई हैव अनदर मीटिंग सो आई हैव टू लीव। थैंक इट्स ओके। यू टू ऑल ऑफ यू एंड वी कैन मीट अप, है ना? आप कल मिल रहे हैं तो एक बार हम इस पे चर्चा भी करेंगे और उसके बाद जो भी रहेगा विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। श्योर, थैंक यू, सभी का बहुत आभार, धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच थैंक यू, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सो डॉक्टर राकेश गुप्ता एंड दीपक जी, ये तो बहुत अच्छा है कि शी हैज कम टू एंड एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, ऑलमोस्ट घंटे का ही नोटिस था इनके पास, और हमने जल्दी जल्दी इनका ऑर्गेनाइज कर लिया है ये एज चीफ गेस्ट। तो आई थिंक इट इज वंडरफुल दैट CCPCR इज नाउ ऑन बोर्ड, और मैं और अरुण जी कल इनको मिलेंगे 3:30 बजे। हाँ जी डॉक्टर आपको याद होगा कि जब हम लास्ट टाइम हरजिंदर कौर से मिले थे, जो चेयरपर्सन थी ये CCPCR हाँ जी की, हाँ जी तो हमने इनको फिर सेंसिटाइज किया था, और शी वांटेड कि हमें आप ड्राफ्ट लेटर दो जो हम बना के एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को और हाँ बाकी डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखेंगे। और उसको मुझे ध्यान है कि उनके कॉर्पोरेशन के साथ उनका मैटर जब टेकअप हुआ था, तो कुछ वेंडर्स यहाँ से उठे हैं, हाँ कुछ वेंडर्स यहाँ से उठ गए हैं। लेकिन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दीपक जी और राकेश गुप्ता जी, जो आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि जो मेहनत यहाँ पे है, ये साइकिलों पे इतने बंदे शुरू हो गए हैं कि अब उनके ऊपर तो कोई वेंडर वाली तो बात नहीं है। अब यहाँ से वो किसी एक तो बंदा को उसको गरीब समझता है, यार ये तो अपनी गरीब सा है साइकिल पे, बट माई माइंड ये साइकिलों पे जो बंदे खड़े हैं ना कॉर्नर कॉर्नर पे, इनके थ्रू ना ड्रग्स भी बिक रही हैं। आई नो, इनके ऊपर शक किसी का जाता नहीं, और ये कोई स्टेबल जगह तो है नहीं है। आज यहाँ खड़े होते हैं, कभी किसी वो कॉलोनी के बाद जाके खड़े हो जाएंगे, कभी किसी स्कूल के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे, तो दे कीप चेंजिंग देयर लोकेशंस। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है डॉक्टर के जी, हम कल जब मिलते हैं ना मैडम को, तो ये पॉइंट हम ये हाँ सारे पॉइंट्स ना आप नोट कर लीजिए, हाँ। और मेरे को आप भेज देना जो भी पॉइंट्स आप 50 वेंडर उठवा दो और 50 साइकिल वाले आ जाए, तो हमारा तो हाँ। नल्लीफाई हो गया सारा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सो आई थिंक नाउ 6 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो आई थिंक वी शुड एंड दिस डिस्कशन, बट इट हैज बीन अ वंडरफुल डिस्कशन एंड इट इज गुड दैट दीपक जी ने अपना जो काम है बिहार में और झारखंड, he has showcased it so well, and we are all motivated to involve print media for advancing tobacco control. So thanks a lot, Deepak ji, Rakesh ji. Is Rajiv Chaudhary with us? Rajiv, are you with us? मैं I think Rajiv is not with us. देख तो हाँ। चलो मैं ही एक फॉर्मल जो है वोट ऑफ थैंक्स आपके लिए। So madam, she has left, but we are really thankful to her for joining us at a very short notice. And Verma ji, आपने अच्छा डिस्कशन के लिए मुद्दा बता दिया। So thank you Deepak ji, thank you Dr. Rakesh Gupta, Thank you, sir. Verma ji, thank you Siddhi, and thank you Ram Prasad and all the participants. They are all
very, in this festival season, it is really difficult to join since we are all डॉक्टर busy. राकेश गुप्ता जी का festival. स्पेशल थैंक्स करा करो, इनकी इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट नहीं, डॉक्टर राकेश गुप्ता को तो हमेशा हाँ, थैंक्स चाहिए। इनका इन्होंने अभी स्पेशल जो थैंक्स करा लेबल्स के लिए करो, रिकमेंडेशन कवर करा भी करो। मेरी मदद की है। टाइम भी निकालते हैं और हाँ। बहुत इन्होंने अच्छी- जो फाइनल हमने ना कर दिया था एक डॉक्यूमेंट, तो उसमें से भी कुछ गलतियां निकाल दी हैं, सो वी आर थैंकफुल टू हिम। तो डॉक्टर साहब एक बार देख लेना आप ना, गूगल ड्राइव में चेंज करके मेरे को फाइनल डॉक्यूमेंट दे देना। मैंने गलतियां निकालने का पर्पस सर का रहता है कि उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सके। नहीं, डेफिनेटली। देखो डॉक्टर राकेश गुप्ता तो वी फील दैट ही इज पार्ट ऑफ साइफर। हमें तो कभी अलग लगा नहीं, जो आरसीएफ इनके ये संस्था है और ये खुद, तो दे आर पार्ट ऑफ द साइफर, सो नो डाउट अबाउट। हम सब लोग आपके साथ हैं सर, हमको भी उसी का हिस्सा मानिए। जी, we are a family. देखो पता क्या है, डॉक्टर राकेश गुप्ता हैज नेवर मिस्ड आवर वेबिनार्स। तो आप थोड़ा सा बिजी रहते हैं, शायद आप नहीं ज्वाइन कर पाते, मगर डॉक्टर राकेश गुप्ता इज ऑल। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन Thank you, करने sir. Thank you very much. So at one time we had about 60 participants, so that is Yeah. commendable in this season of festivities. So thanks a lot. Thank you. ओके, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू सर। Happy Diwali आप to all. लोगों को भी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत आप सबको थैंक यू, Thank you. थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। Thank you.